In a shocking case from Uttar Pradesh, former junior engineer Ram Bhavan and his wife Durgavati have been sentenced to death for sexually abusing at least 33 boys over a decade, some as young as 3 years old. The couple lured children with gifts, money and mobile phones, then filmed the abuse to create child sexual abuse material. Over 2 lakh videos and photos were sold and distributed to nearly 47 countries' viewers. The CBI, with help from Interpol, traced the operation through digital evidence, uncovering the systematic exploitation. Victims continue to suffer serious physical and psychological trauma, including hospitalizations and conditions like squint eyes. The Bandha Special Court convicted the couple under the IPC and POSCO Act for aggravated sexual assault, using children for pornography, criminal conspiracy and abetment. The court applied the rarest of rare doctrine in giving the death sentence. Let's now take a look at the details of this case. Let me show you that, viewers. Now, the couple is of course sentenced to death, which is a very welcome judgment, viewers. This must set an example. Now, the case involves former government engineer Ram Bhavan and his wife Durgavati. The infamous couple is right there on your screens. This is of course, now they're convicted of sexually exploiting at least 33 minor boys over a decade. Victims range from 3 to 18 years old. Viewers, 3 years old, please look at that, with abuse including aggravated sexual assault and unnatural offences. Children, 3 years old. Absolutely disgusting. The couple filmed the abuse, creating child sexual abuse material. They lured vulnerable children with gifts like money, chocolates and mobile phones. Very shocking, viewers. The couple on your screen in the picture, they don't project that image, but it's horrible. Abuse took place in rented rooms and their home. Videos and photos were sold on the dark web and encrypted platforms to buyers in 45 countries. And over 200,000 abusive videos and photos were produced and distributed. The case came to light in October 2020 when Interpol alerted India's CBI about child pornography. CBI traced the crime back to the couple through digital evidence. Raids recovered key evidence including videos, photos, mobile phones and a pen drive. And over 50 victims and 74 witnesses testified during the investigation. So this is the latest information that's coming in, viewers. And on February 18, 2026, the couple was convicted under POSCO Act, IPC and the IT Act. On February 20, 2026, they were sentenced to death by hanging. And the court ordered 10 lakh compensation for each of the 33 victims. But the kind of trauma, viewers, I mean, I would call this couple, this is not a couple, viewers. These are two monsters who've ruined lives of children. Varsha Shahi is joining me live from Lucknow. Varsha, what more can you tell us? देखिए, उत्तर प्रदेश के बांदा के विशेष अदालत के द्वारा इंजीनियर और उसकी बीवी को सजाए मौत की सजा दी गई। आखिर ये सजा इसलिए हुई क्योंकि 2010 से 2020 के बीच में यौन शोषण का मामला सामने आया, जिसमें लगभग 33 बच्चों के साथ यौन शोषण कर उनकी वीडियो वायरल करने की कोशिश की गई। लगभग 2 लाख वीडियो लगभग 45 देशों में प्रसारित की गई थी और जिसके द्वारा पैसे कमाने की लगातार ये कोशिश करते थे। और जिस तरीके से ये यौन शोषण का मामला आया, जिसमें अब इन दोनों इंजीनियर, जो जूनियर इंजीनियर है और उसकी पत्नी है, उसको मौत की सजा दे दी गई है। पूरी तरीके से इन के द्वारा जितने भी पैसे अभी अर्जित कर रखे गए थे, उन सभी को सीबीआई के द्वारा एक आदेश दिया गया है कि उन पीड़ितों को दिया जाए। और साथ ही साथ जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, ये हैरान कर देने वाला है कि आखिर 2010 से लेकर
2020 के बीच में ये किस तरीके से बच्चों को पूरी तरीके से अपने तरफ करते थे और फिर उसके बाद उनका यौन शोषण करते थे, उनकी वीडियो बनाते थे, पॉर्न वीडियो बनाते थे, उसको प्रसारित करते थे। लगभग 45 देश, सोचिए 3 साल के छोटे छोटे बच्चे, लड़के, जिनकी ये वीडियो बनाई जाती थी, फिर उसके बाद अन्य देशों में भेजी जाती थी और उसके जरिए पैसे कमाने की कोशिश ये पति पत्नी करते थे। पूरी तरीके से बच्चों को परेशान भी करते थे। ये कहते थे कि आखिर अगर ये किसी भी तरीके से कोई चीजें करते हैं तो इनको मार दिया जाएगा। तो ये पूरा मामला जब सामने आया, उसको लेकर कार्रवाई लगातार हुई। सीबीआई पूरी तरीके से इस मामले पर जांच पड़ताल कर रही थी अपने तरीके से, और ये देखा जा रहा था कि आखिर इस मामले में किस तरीके से इन पति पत्नी को सजा हो सकती है। लेकिन जब ये पूरा मामला खुला, सीबीआई की जांच रिपोर्ट आई सामने, तो अब इस पूरे मामले पर कोर्ट की तरफ से, बांदा के स्पेशल कोर्ट के जरिए इन दोनों पति पत्नियों को सजाए मौत दी जा रही है। और साथ ही साथ पीड़ितों की तरफ से, क्योंकि लगातार गुहार लगाई जा रही थी, पीड़ित लगातार कोर्ट के चक्कर काट रहे थे, क्योंकि उनके बच्चों के साथ, 3-3 साल के बच्चों के साथ इस तरीके की दुर्व्यवहार किए गए थे, इस तरीके से यौन उत्पीड़न उनका किया जा रहा था। तो यौन उत्पीड़न के Right, viewers, this is absolutely shocking, this case. We have the monster couple up on your screens. The husband and wife, of course, did horrible things to children, and this is a very, very shocking incident that has come to light. But the development, of course, is that they have been awarded the death sentence, which is, of course, a welcome move. Because it's important, viewers, that if these kind of punishments are put out there, people think twice before doing something like this. And I have Varsha Shahi joining me. Varsha, बीच में आपकी आवाज़ चली गई थी, आप हमें और जानकारी दे रहे थे इस केस के बारे में, प्लीज़ बताइए हमें। देखिए, अगर इस पूरे केस के बारे में बात करें तो क्योंकि 2010 से लेकर 2020 के बीच पूरा ये जो 10 साल का मामला है, जो 10 साल में बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न किया गया है, 33 बच्चे जिनके उत्पीड़न की बात बताई जा रही है, इन 33 बच्चों के साथ जो चीज़ें रही, लगभग 3 साल के बच्चे, लड़के जिनके साथ उत्पीड़न किया जा रहा था, इन सभी मामलों को जब सीबीआई अपनी जांच पड़ताल कर रही थी, तो सीबीआई ने अपने जांच पड़ताल में साफ तरीके से राम भवन और दुर्गावती, जो राम भवन की बीवी हैं और राम भवन जूनियर इंजीनियर था, जिसको लेकर पूरी तरीके से जांच पड़ताल जब बैठी, तो इस मामले में अब पूरी कार्रवाई हो चुकी है। बांदा के कोर्ट के जरिए विशेष अदालत रखी गई, विशेष अदालत ने इनको सजाए मौत की सजा दी है। लेकिन इस मामले में जिस तरीके से ये हैवानियत सामने आई कि यौन उत्पीड़न छोटे छोटे बच्चों का किया जा रहा था, उनका वीडियो बनाया जा रहा है, 47 देशों में प्रसारित किया जा रहा था इस वीडियो को, तो अब पूरी तरीके से ये जब मामला खुलकर सामने आ रहा है, इसमें पूरी तरीके से सजा हो चुकी है। तो लोग ये साफ तरीके से कह रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा मामला किस तरीके से किया गया, किस तरीके से प्रसारित किया गया, इसके पीछे क्या क्या चीजें रही, उस पर पूरी तरीके से सीबीआई ने जांच बैठाई। सीबीआई की जांच रिपोर्ट आई और सीबीआई के जांच रिपोर्ट के अनुसार ही ये पूरा फैसला लिया गया। अब सजाए मौत दी गई है इनको, क्योंकि जिस तरीके से छोटे बच्चों के साथ जो कृत्य किया गया है, यौन उत्पीड़न किया गया है, इसके लिए सजाए मौत की भी सजा उनके लिए कम ही है, क्योंकि इस तरीके की कृत्य करना और यौन उत्पीड़न बच्चों का करना, जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं उनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया है, जिसको लेकर ये सजा हुई है। अब इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा जो चीज़ें कोर्ट को धन्यवाद किया जा रहा है पीड़ितों की तरफ से, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आखिर उनके बच्चों के साथ जो यौन उत्पीड़न हुआ उसमें कहीं ना कहीं अब उनको इंसाफ मिल पाया है। इंसाफ मिलने के साथ साथ जो वीडियो वायरल हुई, जो वीडियो लगाई गई, जो वीडियो 47 देशों में भेजी गई, उन पर भी रेस्ट्रिक्शन लगा है। तो जाहिर सी बात है पीड़ित की तरफ से अब पूरी तरीके से कोर्ट को धन्यवाद दिया जा रहा है। शुक्रिया वर्षा हमारे साथ जुड़ने के लिए। ना मूविंग